درد کی تصویر ہوں میں تیرا کشمیر ہوں، احسار وفا، جرأت اور استقامت کی بے مثال جدوجہد۔ ملک بھر کی طرح فیصل آباد میں بھی ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں طلبہ نے ملی نغمہ پیش کر کے حاضرین کو محظوظ کیا۔ حاضرین نے بچوں کی پرفارمنس کو خوب سراہا۔ مقرر فیصل آباد عبدالرحمان نے اس موقع پر اپنی شعلہ بیانی کے جوہر دکھائے۔ انصاف کا ترازو اس کی جانب جھکا دکھائی دیتا ہے۔ کہاں ہے اقوام متحدہ اور اسلامی کونسل کی وہ قراردادیں جو کشمیریوں کے لیے منظور ہوئی؟ ڈپٹی کمشنر عمران احمد شیخ کا کہنا تھا کہ آج کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کشمیر کی آزادی تک جدوجہد جاری رہے گی۔ ان بھائیوں کا، ان بہنوں کا، ان بچوں کا، ان بزرگوں کا قرض ہے ہمارے خون کے اوپر کہ ہم نے ان کی آواز پہنچانی ہے، ان کی جس کو کہہ لیں آواز کو اتنا مضبوط اور توانا کر دینا ہے کہ دنیا مجبور ہو جائے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر پلیبسٹ کروایا جائے۔ کمشنر سلور سعید کا کہنا تھا کہ پاکستان کشمیر کا مقدمہ ہر فورم پر لڑے گا۔ یہ جدوجہد پہلے دن سے جاری ہے۔ کشمیر کی آزادی تک ایسے ہی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ ہم عالم اسلام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اور اقوام عالم کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں کیا جائے گا، اس خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ تقریب کے اختتام پر خصوصی واک کا انعقاد کیا گیا۔ واک میں ضلعی افسران سمیت سول سوسائٹی اور طلبہ و طالبات نے شرکت کی۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ عبدالرحمان، فیصل آباد۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی ضلع انتظامیہ کی جانب سے ضلع کونسل ہال میں مقیم یوم یکجہتی کشمیر کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر ارشد بھدر نے خصوصی شرکت کی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ضلع انتظامیہ کے زیر انتظام ضلع کونسل ہال میں کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے مرکزی تحریک منعقد کی گئی۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر چودھری محمد ارشد بھدر نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر سرکاری افسران، وکلاء، سول سوسائٹی ممبران، امن کمیٹی، میڈیا اور شہریوں کی بڑی تعداد سیاہ پٹیاں باندھ کر تقریب میں شامل ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر ارشد بھدر کا کہنا تھا، آج کے دن کو منانے کا مقصد بھارت کو یہ بتانا ہے کہ کشمیر تمہارا نہیں ہے۔ بے گناہ شہید کشمیریوں کا خون رنگ لائے گا اور آزاد کشمیر کی صبح ضرور طلوع ہوگی۔ سیمینار کے اختتام پر ڈپٹی کمشنر کی زیر قیادت ریلی بھی نکالی گئی۔ شرکاء ریلی نے کشمیر کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ مظلوم کشمیری بھائیوں سے یکجہتی اور بھارت کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ کیمرہ مین راشد انوار کے ہمراہ اسامہ یاسین، سٹی 41 ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ چنیوٹ میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر چنیوٹ بلال بن عبدالحفیظ کی زیر قیادت میونسپل کمیٹی آفس سے قائد اعظم ایجوکیشنل اکیڈمی تک ریلی نکالی گئی۔ پل میں بدلتے وقت نے منظر بدل دیا، دل رو رہا تھا کل میرا کشمیر دیکھ کر۔ ملک بھر کی طرح چنیوٹ میں بھی یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ریلی بھی نکالی گئی جس میں ضلع انتظامیہ کے افسران، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر فضل عباس، اسسٹنٹ کمشنر بلال بن عبدالحفیظ، ڈی ایم او اسلم ضیاء، سی او ضلع کونسل عظمت فردوس، وقاص ہرل، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ڈاکٹر ہادم حسین، ڈپٹی ڈی او جلیل احمد، سی او ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر مشتاق بشیر، ڈی او سول ڈیفنس محمد صدیق، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر شہباز خان کے علاوہ پولیس اور دیگر محکموں کے افسران، علماء کرام، انجمن تاجران، سول سوسائٹی، طلبہ و طالبات، صحافیوں اور تمام مکاتب فکر کے سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی۔ شرکاء نے کشمیریوں کے حق میں نعرے بازی کی۔ یہی میسج ہے کہ کشمیر کے اوپر جو بھارت کا قبضہ ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی مناسبت سے بھی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے بھی بالکل ناجائز ہے اور اسے ختم ہونا چاہیے۔ کشمیری عوام کو استصواب رائے یعنی کہ ان کو اپنی رائے دینے کا جو حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ 75 سالوں سے جس مسئلے کی ہم نے آبیاری، جس مسئلے کے اندر ہم نے محکوم کے ساتھ جو ہے وہ اپنی کھڑے ہونے کی جو اپنی استعداد ہے وہ رکھی ہے ہمیشہ۔ جنگ میں پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کی کارروائیاں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4 ذخیرہ اندوزوں اور گرہ فروشوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق پرائز کنٹرول مجسٹریٹس نے 2 مقامات پر شہریوں کی نشاندہی پر چھاپے مارے۔ مجموعی طور پر 339 مقامات پر قیمتوں کو چیک کیا گیا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں، ہونڈا اٹلس نے اپنی تمام گاڑیوں کی قیمتیں ایک بار پھر بڑھا دیں۔ کار ساز کمپنی ہونڈا نے ایک ہفتے میں دوسری بار قیمتوں میں 2 بار اضافہ کیا ہے۔ ہونڈا اٹلس کی قیمتیں مزید بڑھنے پر کار ڈیلرز نے مایوسی کا اظہار کیا۔ کہتے ہیں کہ اب تو ہمارے پاس گاڑیوں کی قیمت پوچھنے کے لیے بھی گاہک نہیں آتے۔ ہم نے جس ریٹ پر گاڑیاں بک کر رکھی ہیں، ڈیلیوری پر ہمیں اضافی رقم دینی ہوگی۔ دوسری طرف گاڑیوں کی ڈیلیوری میں بھی کمپنی غیر معمولی تاخیر کر رہی ہے۔ ہونڈا سٹی اسپائر سی وی ٹی 1.5 کی قیمت میں 3,20,000 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کے بعد نئی قیمت 51,19,000 روپے ہو گئی ہے۔ ہونڈا بی آر وی سی وی ٹی 3,50,000 روپے مہنگی ہو کر 56,49,000 روپے کی
अब रकम पर पहुंच चुकी है। इस रोज होंडा सिविक की कीमत 80,99,000 रुपए थी, जबकि आज होंडा सिविक की नई कीमत 86,49,000 रुपए हो गई है। ने पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में 11 लाख प्राइस बढ़ाई है। पिछले हफ्ते उन्होंने 5.5 लाख, इस हफ्ते 5.5 लाख, 11 लाख। ये अचानक नहीं है, ये प्री प्लान है। इसलिए प्री प्लान कह रहा हूं मैं कि ये अगर यक लख्त बढ़ाएंगे ना तो वहां सर इनका फोड़ने को जाएगी। हमारे कारोबार ये हालात पे पहुंचा दिए इन्होंने कि एक शोरूम हमारी मार्केट में बंद हो गया कल, वो आज सामान उठा के चले गए हैं। अच्छा सर, जब यहाँ पे हम सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे, चल ही नहीं सकेंगे, कोई गाड़ी खरीद नहीं सकेंगे, गाड़ी सेल नहीं कर सकेंगे। ये 2022 मॉडल है। ये पिछले हफ्ते में इस गाड़ी की कीमत 48 लाख थी, आज इस गाड़ी की कीमत 50 लाख है। खड़े खड़े सर, उसको मुबारक हो, उसका 2 लाख बढ़ गया, मगर लेने वाला कहाँ पे बंदा है? सर कुछ तो ख्याल करें यार, आप पॉलिसी बनाने वाले कुछ तो ख्याल करें कि आप इस मुल्क में टैक्स के पैसों से तनख्वाह ले रहे हैं। आपने कभी अल्लाह के सामने नहीं जाना, कभी मुंह नहीं दिखाना, हिसाब नहीं देना आप लोगों ने। चिन्योट में फैसलाबाद रोड पर लगने वाला गाड़ियों का एतवार बाजार में इंतहाई बुलंद कीमतों की नजर हो चुका है। फैसलाबाद रोड पर लगने वाला गाड़ियों का एतवार बाजार भी डॉलर की कीमत और गाड़ियों की कीमतें बढ़ने से सुनसान हो गया है। खरीदार और गाड़ियां बेचने वाले दोनों परेशान हैं। कार डीलर कहते हैं कि डॉलर की बढ़ती कीमतों ने ऑटो इंडस्ट्री तबाह कर दी। एक हफ्ते में गाड़ियों की 2-3 लाख रुपए कीमत मजीद बढ़ गई। खरीदार कहते हैं जितना बजट लेकर आते हैं उतने में अब गाड़ी नहीं मिलती। आम आदमी की कोशिश है कि सस्ती गाड़ी मिल जाए। बाहर से लोग आते थे ना गाड़ियां लेकर, उनको तो आज पेट्रोल ही नहीं मिल रहा। कोट मोमिन, अफजाबाद और शेखुपुर तक लोग आते थे, तो आज अभी तक तो कोई गाड़ी पहुंची ही नहीं। गाहक भी दूर से आते थे, वो भी नहीं आ रहे। जो गाड़ियां महंगी हुई हैं डॉलर की वजह से, उसकी वजह से भी खरीद पे फर्क पड़ा है। ज़्यादा फर्क पड़ गया। जो गाड़ी 25 लाख की मिल रही थी अब 30 की भी नहीं मिल रही, तो कोई गाहक खरीदने के लिए तैयार नहीं। पूरी मार्केट इसी तरह आज बिल्कुल बर्बाद पड़ी है। एक्चुअली जो गाड़ी मैं पिछले एतवार को भी आया था, पहले मैंने एक गाड़ी खरीदी थी जो मुझे वो 6 लाख की मिली थी, अब वो इधर 10 लाख की मिल रही है। तो अब आम आदमी की पहुंच से तो गाड़ी दूर हो गई है। अब जो इधर रेट था ना, तकरीबन आप कह लें वो जो तकरीबन 150 गुना गाड़ी का रेट बढ़ गया। मतलब आप देख लें, मेहरान पहले 7 लाख की थी पिछले साल, और इस दफ़ा अब मेहरान मिल रही है 22 मॉडल 14 लाख की। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आम आदमी की पहुंच से तो गाड़ी दूर हो गई। दूसरा पेट्रोल का जो इन्होंने रेट, ये एक्चुअली ये जो डॉलर का इशू है ना, ये इन्होंने डॉलर को मतलब इतना रेट रुपए की कदर कम हो गई, ये बहुत असर रखता है इस पर। हाँ जी। एफबीआर मुलाजमीन की दौरान सर्विस निजी टैक्स प्रैक्टिस का मामला। हेडक्वार्टर ने अफसरान और मुलाजमीन से दौरान सर्विस निजी टैक्स प्रैक्टिस ना करने का हल्फनामे तलब कर लिए हैं। आपको बताएं यहां पर कि एफबीआर मुलाजमीन की पाबंदी के बावजूद दौरान सर्विस निजी टैक्स प्रैक्टिस जारी है। टैक्स बार ने मुलाजमीन की निजी टैक्स प्रैक्टिस और कंसल्टेंसी के हवाले से शिकायत की थी। सेक्रेटरी HRM वकास अहमद गंगा की जानिब से जारी सर्कुलर के मुताबिक पाबंदी के बावजूद कुछ मुलाजमीन गैर कानूनी अमल का हिस्सा बन रहे हैं। हल्फनामे की पासदारी न करने वालों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। फैसलाबाद में फेस्को के जदीद बिजली सिस्टम बिछाने के दावे महज दावे रह गए। चौक घंटा घर के 8 बाजारों में जदीद बिजली सिस्टम बिछाने का मंसूबा इल्तवा का शिकार हो गया। फैसलाबाद में फेस्को के जदीद बिजली सिस्टम बिछाने के दावे महज दावे। चौक घंटा घर के 8 बाजारों में जदीद बिजली सिस्टम बिछाने का मंसूबा इल्तवा का शिकार। फेस्को ताहाल जदीद सिस्टम बिछाने के लिए निजी फ्रेम का इंतखाब न कर सका। लटकते तारों के मसाइल भी हल न हुए। घंटा घर के बढ़ते मसाइल पर ताजर परेशान। उधर झंग इंतजामिया को बड़े साने का इंतजार। रेल बाजार, फूलों वाला चौक, कटरा बाजार समेत मुतादिद मार्केटों में बिजली के लटकते तार ताजरों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। लटकते तार के सबब आए रोज आग लगने के वाकयात भी रिपोर्ट होने लगे, मगर फेस्को हुकाम लंबी तान के सो गए। ताजरों का कहना था कि अरबों रुपए टैक्स देते हैं मगर कोई सहूलत फराहम नहीं हो। फेस्को एहलकार बिजली का बिल देने तो आ जाते हैं मगर कभी तारें दुरुस्त करने नहीं आए। मुतादिद दफा फेस्को ऑफिस में दरख्वास्तें दी मगर कोई सुनवाई नहीं होती। फेस्को वाले जो हैं, हुकाम आला जो हैं, उनकी बिल्कुल इसके ऊपर कोई फोकस नहीं है। इन्हें चाहिए कि इन गुच्छों को कोई तरतीब दें, उससे ताजर भी बचे और इंसानी जिंदगियां जो हैं, जो दाव पे लगी हुई हैं, वो भी आने वाले नुकसान से बचे। ताजरों का कहना था कि फेस्को हुकाम को बिजली की लटकती तारों का सदबाब करना चाहिए ताकि ताजरों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े।
और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद पुलिस के माजूर एहलकारों के लिए खुशखबरी। माजूर एहलकारों के लिए व्हील चेयर और मसनूई औजार लगवाने का फैसला किया गया। जरूरतमंद एहलकारों को इलेक्ट्रिक बेड भी फराहम किया जाएगा। CPO फैसलाबाद खालिद महमूद हमदानी ने माजूर एहलकारों की तफसीलात भिजवाने का हुक्म दे दिया है। फैसलाबाद के बाग-ए-जिना में शोहदाए पेशावर की याद में शमे रोशन की तकरीब का इनेकाद किया गया। फैसलाबाद के बाग-ए-जनाब में शोहदाए पेशावर की याद में शमे रोशन की गई। शमे रोशन करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, CPO और दीगर अफसरान ने तकरीब में शरीक होकर शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। तकरीब में कमिश्नर सलवत सईद, डिप्टी कमिश्नर इमरान अहमद शेख, CPO खालिद महमूद हमदानी, AC सिटी वकास सफदर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फैसल सुल्तान शरीक हुए। सदर प्राइवेट स्कूल अलायंस सदाकत हुसैन लोधी व मेंबर सुहेल विर्क, शेख फरीद, राना सकी, आसफ लोधी समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर कमिश्नर सलवत सईद का कहना था कि हम शोहदा पेशावर और इनके लवाहकीन के लिए दुआगो हैं। CPO खालिद महमूद हमदानी का कहना था कि पूरी कौम पेशावर पुलिस को खराज अकीदत पेश करती है। हम भी पेशावर पुलिस के साथ शाना बशाना खड़े हैं। पेशावर में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों को हमारा सलाम। तकरीब के आखिर में सानहा पेशावर के शोहदा के लिए खसूसी दुआ भी की गई। पेशावर के शोहदाए कराम को सलाम पेश करने, उनकी इस अजीम कुर्बानी जो लाजवाल अपने खून से उन्होंने रंगी है इस मुल्क की हिफाजत के लिए, उन सबको आज हम खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जो है हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं शोहदाए पेशावर को खराज तहसीन पेश करने के लिए और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ के लिए। पेशावर पुलिस और KP पुलिस ने वार एंड टेरर में जितनी बड़ी कुर्बानियाँ पेश की हैं और मुसलसल पेश कर रहे हैं, उसको पूरी कौम इस्लाम पेश करती है। जंग ज़िला इंतजामिया की जानिब से पेशावर के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। पेशावर में पुलिस लाइन के शोहदा को शमे जलाकर खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुजम्मल इलियास ने खसूसी शिरकत की। कमालिया के कलमा चौक में शमे रोशन की गई। असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा जट, चीफ ऑफिसर ताहिर फारूक, सदर अंजुमन ताजरान सैयद अकबर शाह, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान चौधरी शहबाज ने शिरकत की। शुरका ने दहशत गर्दी के बुज़दिलाना फेल की भरपूर मजम्मत की। गोजरा में तहसील इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम शमे रोशन की गई। दुआया तकरीब में म्यूनसिपल कमेटी, अमले, सिविल सोसाइटी, वकला ने शिरकत की। साबिक सदर बार शेख जावेद, पीर सैयद रारुल बहार शाह मौजूद थे। शुरका का कहना था कि पुलिस लाइन शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। मुल्क दुश्मन अनासर को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। आंधवाला के DPO ऑफिस में भी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में DSP मलिक जफर, SHO सिटी काशिफ अमान, SHO बालक मुसद्दिक रियाज, SHO कुर अली हुसैन, SHO गढ़ रियाज और अमला की शिरकत। तकरीब में शमे रोशन करके सानहा पेशावर के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। फैसलाबाद के इलाके गुलाम मोहम्मद आबाद में हजरत अली अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत के हवाले से रैली निकाली गई। रैली में फर्जंदान इस्लाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। हजरत अली अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पर गुलाम मोहम्मद आबाद से सबसे बड़ी रैली निकाली गई। रैली में फर्जंदान इस्लाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली में ऊंट गाड़ियों पर सवार होकर शुरका ने कसीदे पेश किए। रैली के रास्तों में सबीले और लंगर का एहतमाम किया गया। रैली के शुरका का कहना था, हर साल हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत के इजहार के लिए रैली निकालते हैं। ये 23-24 साल से सैयद अमीन अली शाह साहब के आस्थाने से हम चलते आ रहे हैं। ये जुलूस मौला अली अलैहिस्सलाम का हजारों साल तक चलता रहे, ये सैयद बादशाह की दुआ है और कायनात तक, जब तक कायनात चलेगी ये जुलूस चलता रहेगा। रैली में फर्जंदान इस्लाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। रैली गुलाम मोहम्मद आबाद से होती हुई सिद्धूपुरा और रवायती रास्तों से होती हुई सुभान अल्लाह चौक गुलाम मोहम्मद आबाद में इख्तिताम पजीर हुई। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद में शेखुपुरा रोड पर रजा मेडिकल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया गया है। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में रजा मेडिकल कम्प्लेक्स का इफ्तिताह शेखपुरा रोड पर किया गया। इफ्तिताह के मौका पर मेंबर पंजाब बार काउंसिल इम्तियाज अहमद लूना, डॉक्टर अरशद फरूक गोराया, प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फकार, CEO रजा मेडिकल कम्प्लेक्स सैयद रजा हुसैन बुखारी मौजूद थे। इस मौका पर CEO रजा मेडिकल कम्प्लेक्स सैयद रजा हुसैन बुखारी का कहना था कि रजा मेडिकल कम्प्लेक्स का मकसद इंसानियत की खिदमत है। हमने इंसानी खिदमत के लिए इसका आगाज़ इस तरह किया है कि 5 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप, जिसमें तमाम टेस्ट और हर किस्म की सहूलत जो है ना वो 50% डिस्काउंट में करेंगे। ये 5 रोज़ा मेडिकल कैंप होगा। इसमें अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन और दीगर सहूलियात जितनी भी हैं वो तमाम 50%
डिस्काउंट पे ही करेंगे। रजा मेडिकल कॉम्प्लेक्स की जानिब से 5 रोज के लिए शहरियों को फ्री मेडिकल कैंप की सहूलत भी फ्राहम कर दी गई। 6 फरवरी से 10 फरवरी तक आधी कीमत पर हर किस्म के मेडिकल टेस्ट की सहूलत शहरियों को मुयसर होगी। इस मौका पर डॉक्टर अरशद फारूक का कहना था कि रजा मेडिकल कॉम्प्लेक्स से शेखपुरा रोड से मुल्हिका इलाकों को करीब तर हेल्थ की सहूलियात मिलेंगी। लोगों को सेहत की अमूमी सहूलियात मुयसर नहीं है, तो उस सिलसिले में आज जो रजा मेडिकल कॉम्प्लेक्स की सूरत में इफ्तिताह हुआ है, तो यकीनन इस लोगों के लिए एक उम्मीद अफजा पैगाम है और यहाँ पर आकर वो अपनी सेहत की मुश्किलात को देख सकते हैं, खातिर खा टेस्ट करवा सकते हैं और इस सिलसिले में जो भी इलाज उनको चाहिए वो भी यहाँ पे मुयसर होगा। रजा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मुख्तलिफ इमराज की जदीद टेस्टिंग लैब की सहूलियात भी दस्तियाब हैं। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में 11वीं सालाना कौमी किचन गार्डन फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। फेस्टिवल में फैमिलीज की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फैसलाबाद में सालाना 11वां कौमी किचन गार्डन फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें फैमिलीज की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फेस्टिवल में गुड़ बनाने के तरीके, किचन गार्डनिंग, सब्जियां उगाने के तरीकों के बारे में आगाह किया गया। ताज़ा खालिस मसाले, मुख्तलिफ अशिया और खाने पीने के स्टॉल्स भी फेस्टिवल में लगाए गए, जिनमें साग, मकई की रोटी, गोल गप्पे के स्टॉल्स भी शामिल थे। अब्दुल गनी फाउंडेशन के CEO अजमल फारूक ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की और कहा कि नेशनल किचन गार्डन फेस्टिवल एक फैमिली फेस्टिवल है। किचन गार्डनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको घर में बहुत ज़्यादा कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ज़रूरत नहीं होती। ये आप अपनी बालकनी में, छत के ऊपर, अगर थोड़ी बहुत स्पेस है घर के अंदर, यार्ड के अंदर, बैक यार्ड के अंदर, उधर आप इनको उगा सकते हैं। तो इसमें हमने ये कोशिश की है कि बच्चों को और जो फैमिलीज़ हैं, ख़ास तौर से ख़वातीन जो हाउस वाइफ्स हैं, उनको हम ये बताएं कि इनको किस तरीके से उगाया जा सकता है, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। डॉक्टर नजमा अफजल और SP स्टोर के मालिक भी फेस्टिवल में मौजूद थे। डॉक्टर शहजाद बसरा, डॉक्टर सजाद इकबाल सिंधु ने फेस्टिवल में खुसूसी शिरकत की। शहरी कहते हैं कि हर साल की तरह किचन गार्डनिंग सीखने के साथ साथ फैमिली की एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत कुछ मौजूद है। इस तरह के इवेंट होने चाहिए ताकि चीज़ें रिकॉल हों, हमारे बच्चों को, फैमिलीज़ को पता होना चाहिए कि हमारा जो बेसिक चीज़ें हैं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, कहाँ से जनरेट होती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। यहाँ इतनी आवाम आई हुई है कि अच्छा लग रहा है कि यहाँ किचन गार्डनिंग को लोग कितने शौक से करना चाह रहे हैं और इसको सीखना चाह रहे हैं। गुड़ से बने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स, पौधे लगाने की अमली तरतीब और बच्चों के लिए प्लांट्स की फराहमी भी की गई। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग के मारूसीपुर हाई स्कूल में अशरफ ताहिर हयातियाती बायोलैब का इफ्तिताह कर दिया गया। टोबा टेक्सिंग के मरूसीपुर हाई स्कूल में अशरफ ताहर हयातियाती बायोलैब का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी डॉक्टर अशरफ ताहर, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस सतारा इम्तियाज, डॉक्टर शाहद आदल, एडिशनल सेक्रेटरी पब्लिक सेक्टर पंजाब बोर्ड, सैयद अरशाद हुसैन शाह, प्रिंसिपल मरूसीपुर स्कूल, डॉक्टर फकीर हुसैन, स्कूल के तमाम उस्ताजा समेत दीगर सरकारी इदारों के अफसरान ने शिरकत की। स्कूल इंतजामिया ने मेहमानों का पुरतबाक इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां भी निछावर कर दी गयी। डॉक्टर अशरफ ताहर सितारा इम्तियाज समेत मेहमानान ग्रामी की जानिब से अशरफ ताहर बायोलैब का इफ्तिताह किया गया। इस मौका पर डॉक्टर अशरफ ताहर सितार इम्तियाज ने कहा, बच्चे किताबों में थ्योरी की बजाय अगर साइंस लेबॉर्ट्री में प्रैक्टिकल करके तालीम हासिल करेंगे, इन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ताहर अशरफ लैब डिवीजन भर के तलबा के लिए बनाई गई है। स्कूल में बायोलैब थी नहीं पहले, अब बायोलैब है, मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट, सारा इक्विपमेंट भी इनको लेके दिया है, अब बना भी दी है। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।